हेलो फ्रेंड्स, आज हम मस्ट हैव टू और शुड में डिफरेंस देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। योर वाइफ हैज फीवर, यू मस्ट टेक हर टू हॉस्पिटल। यहाँ पर नेसेसिटी बताई जा रही है। द स्पीकर फील्स इट नेसेसरी। स्पीकर को लगता है, जो वक्ता होता है उसको लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ओके, तो यू मस्ट टेक हर टू हॉस्पिटल मीन्स इट इज़ अनअवॉइडेबल, इसे टाला नहीं जा सकता। It is very necessary that you take her to hospital. You must not overeat. यहाँ भी necessity है, ज़्यादा नहीं खाना है। ओके, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना है, बिल्कुल यहाँ स्पीकर द्वारा महसूस की गई ज़रूरत है। You must not drink while driving. यहाँ पर prohibition है, means restriction है। When drinking is not allowed while driving, मतलब ड्राइव करते समय ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिशन है, यहाँ पर मनाही है। Means not to do something is very important, is very necessary, and it is unavoidable. It's a rule in fact. Now the next two sentences show assumption or deduction. Assumption or deduction means what you have concluded is true. You do not know the truth, but seeing something else, you have concluded that that is true. For example, She hasn't eaten anything since morning. सुबह से वह कुछ नहीं खाई है. It means she must be hungry now. She is hungry. You cannot say this because you don't know. You just think that this is possible because she hasn't eaten anything since morning, so she must be hungry now. This was about the present reduction. Now let's see the past one. My mother must have cooked this delicious food, as none of you knows how to cook well. Although you did not see your mother cooking food, you know that nobody else knows how to cook well, so you are certain that your mother has cooked the food. So you use must have plus third form of the verb. My mother must have cooked this delicious food means मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ ने ही बनाया होगा ये भोजन, क्योंकि तुम में से अन्य कोई जानता ही नहीं अच्छे तरीके से बनाना। I had to take her to hospital because she was very ill. मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि वह बहुत बीमार थी, या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वह बहुत बीमार थी। तो इस तरीके से मस्ट का जो पास्ट होता है, पास्ट टेंस हैड टू होता है, मीन्स समथिंग वॉज वेरी नेसेसरी इन द पास्ट, सो इट वॉज डन। चलिए हैव टू का यूज़ देखते हैं। हैव टू इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन और रूल। जब कोई बाहरी प्रेशर हो आपके ऊपर काम करने का, या फिर कोई रूल हो और रूल के तहत आपको कोई काम करना है, तो वहाँ पर हैव टू का यूज़ करते हैं। जबकि मस्ट का यूज़ करते हैं जब जो स्पीकर होता है उसके द्वारा कोई प्रेशर है या उसके द्वारा नेसेसिटी बताई जा रही है, अनिवार्यता बताई जा रही है काम की। For example, I have to send this report to my boss now because there is pressure from my boss, so that I do that means I send this report. Okay, this is an obligation from the boss. He has to wear uniform at work. काम पर उसे यूनिफॉर्म पहनना होता है, पहनना पड़ता है, means it's a rule. So we use have to talk about a rule or an obligation or pressure from outside. The past form of have to is had to, and the future form is will have to. For example, I had to send this report to my boss, या फिर I will have to send this report to my boss tomorrow. We can use have to in negative forms as well. And when we use have to in negative forms, it removes the obligation or necessity, means it is not necessary to be done. मतलब नेगेटिव फॉर्म में हैव टू का यूज़ करते हैं तो वह कार्य बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता है, किया जा सकता है पर ज़रूरी नहीं होता, मीन्स जो प्रेशर होता है वो हट जाता है। जैसे यू डोंट हैव टू पे फाइन मीन्स इट इज़ ओके इफ़ यू डू नॉट पे द फाइन, यू कैन पे इफ़ यू वांट। ओके, चाहते हो तो फाइन दे सकते हो पर ज़रूरी नहीं है। ही डज़ नॉट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म एट वर्क मीन्स काम पर
यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है. इफ़ यू लाइक यू कैन डू. ओके. और ये है मस्ट नॉट से डिफरेंट है. अगर हम मस्ट नॉट का यूज़ करें, यू मस्ट नॉट पे फाइन मीन्स इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू दैट. ओके. यू मस्ट नॉट वेयर यूनिफॉर्म एट वर्क मीन्स don't wear uniform at work. It's necessary that you do not wear uniform at work. And now let's understand should. We use should to give our opinion. Means what is the right thing for somebody to do something. Your parents are old now. You should care for them. Means मुझे क्या लगता है, what I think is right, what I think is the best thing. तो योर पेरेंट्स आर ओल्ड नाउ, तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड हैं. एंड व्हाट आई थिंक इज़ गुड और बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ यू शुड केयर फॉर देम. तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए. ओके. ही शुड लुक फॉर अ जॉब नाउ. उसे एक काम ढूंढना चाहिए. मीन्स ही हैज़ नो मनी राइट नाउ. सो व्हाट आई थिंक ही शुड डू इज़ टू लुक फॉर अ जॉब. उसे काम ढूंढना चाहिए. मीन्स इट्स सिमिलर टू गिव एडवाइस. एक एडवाइस देने ही जैसा होता है. टू गिव योर ओपिनियन मीन्स टू गिव योर एडवाइस. एडवाइस मीन्स वी जस्ट टॉक टू द पर्सन स्टैंडिंग बिफोर मी आर टॉकिंग टू. आई एम टॉकिंग टू. बट द ओपिनियन कुड बी फॉर एनी वन, whether the person I'm talking to or somebody else I'm talking about. What is difference between must and should? Must is used for an unavoidable action, but should is used for something which could be avoided. कहने का तात्पर्य जो काम करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई काम करना ज़रूरी है पर उसे टाला भी जा सकता है, उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. Another use of should, probability. It's similar to possibility, about 70 or 60%. My mother is not here. She should be in the kitchen. मेरी माँ यहाँ नहीं है, वो किचन में होगी. ओके. एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना जताई जा रही है. प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर. एंड ही शुड बी देयर इन 5 minutes. इट्स अ फ्यूचर प्रोबेबिलिटी. मीन्स समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर. यदि हम यहाँ मस्ट का यूज़ करें, शी मस्ट बी इन द किचन मीन्स आई एम 100% सर्टन दैट शी इज़ देयर. माई मदर इज़ नॉट हियर मीन्स देयर इज़ नो अदर प्लेस वेयर शी कुड बी. सो शी मस्ट बी इन द किचन. लेकिन हम यहाँ शुड का यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट दैट सर्टन. मैं उतना सर्टन नहीं होता हूँ जितना कि मस्ट के केस में हूँ. ही शुड बी देयर इन 5 minutes मीन्स वह 5 मिनट में आएगा, ऐसी संभावना है. लेकिन मस्ट का यूज़ करें, ही मस्ट बी देयर इन 5 minutes, मतलब उसे 5 मिनट में आना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर मस्ट और शुड दोनों डिफरेंट हैं. हम शुड का यूज़ प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, लेकिन मस्ट का यूज़ फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं करते. ओके. बल्कि पास्ट डिडक्शन के लिए कर सकते हैं. पास्ट में कोई काम हुआ उसके लिए हम सर्टेन है उसके लिए करते हैं. जैसे शी मस्ट हैव stolen my purse because she was with me all the time. वह मेरे साथ थी पूरा समय और वही मेरा पर्स चुराई होगी. कंफर्म. लेकिन हम शुड का यूज़ करते हैं अगर ऐसा. शी शुड हैव स्टोलन माई पर्स मीन्स उसने गलत किया, उसे मेरा पर्स चुरा लेना चाहिए था. मीन्स आई एम अनहैप्पी दैट शी डिड नॉट स्टील माई पर्स. शी शुड हैव स्टोलन मीन्स मतलब उसको चुरा लेना चाहिए था. तो इस तरीके से शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.